This question, Mr. Ram and Son is leased of a mine on a royalty of 2 per ton of coal raised with minimum rent of 16,000. Mr. Ram and Son. Mr. Ram and Son here is a lessee. Who is the lessee over here? Mr. Ram and Son is a lessee. Royalty is rupees 2 per ton. Minimum rent is 16,000 per annum. And he has a power to recoup the short working amount during the first 2 years of the lease only. Means in the first 2 year only he has a right to recoup the short working amount or the royalty reserve amount. The output were given. Output for 2018 is 5,000 ton. Output for 2019 is 9,000 ton. Output for 2020 is 8,000 ton. There are 3 year output given in our question, and we have been told to close the book in each year on 31st December, and you have to pass the journal entry in the book of landlord and open, and we have to also make ledger account of Mr. Ram and Son. Ram and Son means a lessee account. Royalty reserve account means short working. Okay. So on the basis of this information, first we'll prepare the royalty schedule. So uh, in royalty schedule, first we make the columns. First column will be of year. In year, we'll mention the year. Copy from here. Like in first year is of 2000. First year is 2018. In 2018, we are going to get 5,000 ton of production output. In second year 2019, 9,000 ton production. 2020, 8,000 ton production. Then we'll multiply 9,000 into 2, we'll get 18,000. Then we'll multiply 8,000 into 2, we'll get 16,000. So this is the amount of royalty we are getting in the 3 years. And the minimum rent for 3 years is per year 16,000 per annum. So we have written 16,000 in each year. In the first case, if we see in 2018, the royalty actually earned is 10,000, and the minimum rent which is set is 16,000. Means royalty is less than minimum rent. This is the situation of first case. In this case, because the royalty is less and the minimum rent is more, there is a short working of 6,000 rupees. Okay, and there is no surplus because there is a short working, so there is no surplus. Short working recoup, here we will put dash because there is no recoupment, there is no surplus. We cannot transfer any amount in the short working. And how much will pay to landlord? The maximum of royalty and minimum, that is 16,000. We'll pay 16,000 to the landlord because it is a minimum amount which we have to pay. In 2019, the royalty amount is 18,000 and the minimum rent account is 16,000. So in here, in second year 2019, we are getting surplus of rupees 2,000. So what we'll do of 2,000? We have the option to recoup. So we'll recoup how much amount from 6,000? Only 2,000 because the surplus is only of 2,000. So we will write over here short working recoupment 2,000 rupees. After that, there is the duration is only of 2 years. So the excess 4,000 will transfer in the PNL because we don't have option to recoup if we are having also surplus amount. So the balance amount will be transferred to the PNL account. Now, how much will pay to landlord? The 16,000 because actually we have earned the royalty of 18,000, but the surplus amount is used for the recoupment purpose. So we'll paid only 16,000, the remaining amount. 18 minus 2, that is 16,000. In the last year, the royalty amount is 16,000 and the minimum rent is also of 16,000. Means minimum rent is equal to 16,000. So there is no short working, there is no surplus, there is no option of recoupment, and there is no transfer of
recoupment amount into the P&L account. In this case, we will pay to the landlord the maximum of royalty or minimum. So both are similar amount. So we will pay 16,000 to the landlord. This is the royalty schedule which we had made. Now with the help of this royalty schedule, we will pass the journal entry. 18. The first situation is of what? The royalty is less than minimum account. Means first entry will be pass of amount due. तो हमने कैसे क्या पास किया था? लेसी अकाउंट डेबिट. लेसी अकाउंट डेबिट हम किससे करेंगे? मिनिमम रेंट से 16,000 से. टू रॉयल्टी रिसीवेबल. रॉयल्टी कितनी रिसीव हुई है? 10,000. सो टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट ऑफ ₹10,000. टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग कितनी की हुई? 6,000 की. तो टू शॉर्ट वर्किंग, या लैंडलॉर्ड की बुक में हम रॉयल्टी रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं, तो टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व दैट इज ऑफ 6,000. शॉर्ट वर्किंग रिजर्व 6,000. ये एंट्री है ड्यू की एंट्री. नेक्स्ट एंट्री 2018 में जो पास करेंगे, ड्यू के बाद क्या होता है? पेमेंट होता है. पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट की एंट्री में बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे. पैसा बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 16,000 से. जो मिनिमम रेंट अकाउंट है उससे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 16,000. बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 टू राम एंड सन. कौन दे रहा है? राम एंड सन. 16,000. ये है पेमेंट की एंट्री. नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या रहेगी? ट्रांसफर करेंगे हम. क्या ट्रांसफर करेंगे? इनकम या एक्सपेंस. यहाँ इनकम हमारी क्या थी? रॉयल्टी रिसीवेबल. रॉयल्टी रिसीवेबल जो कि हमने पहले क्रेडिट की थी, अब उसको डेबिट करेंगे P&L में. तो उसकी एंट्री क्या रहेगी? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹10,000. यहाँ हमने नरेशन लिखा हुआ है कि बीन द ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट. सो दीज थ्री एंट्री विल बी पास्ड इन 2018. और ये पहला सिचुएशन किसका था? रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट. इस वजह से यहाँ रॉयल्टी रिजर्व या शॉर्ट वर्किंग जनरेट हुआ है 6,000 की. ओके. नाउ इन द नेक्स्ट ईयर 2019 का है, जिसमें कि अगर आप देख रहे हो रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट. अब इस केस में क्या होता है? सरप्लस आ जाता है. सरप्लस हो जाता है तो क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन है 2 साल तक हम इसको रिक्यूप कर सकते हैं. ठीक है. अब देखते हैं सरप्लस पहले तो कितने अमाउंट का आता है. जैसे कि 2,000 रुपीज़ का सरप्लस था, तो पहली एंट्री सेम रहेगी, ड्यू की एंट्री. तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल. सो इन आवर केस लेसी इज राम एंड सन अकाउंट. राम एंड सन्स अकाउंट हम डेबिट करते हैं 18,000 रुपीज़ से. मैक्सिमम ऑफ रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट हम लिखते हैं, तो हम ड्यू करेंगे 18,000 से. इन 2019 हमारी सरप्लस हुआ है 2,000 रुपीज़ का, तो पहली एंट्री ड्यू की रहेगी. ड्यू की एंट्री में राम एंड सन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 18,000 से, और टू रॉयल्टी रिसीवेबल जो कि 18,000 से उसको हम क्रेडिट करेंगे. ये ड्यू की एंट्री हुई. नेक्स्ट एंट्री रहेगी, क्योंकि सरप्लस हुआ है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सरप्लस को रिक्रूप करें, तो 2,000 रुपीज़ हम रिक्रूप करने का ऑप्शन है हमारे पास. तो इसलिए हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम चाहे तो ये 2 एंट्री को एक बना दें, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बैंक अकाउंट टू राम एंड सन अकाउंट, या हम 2 एंट्री अलग से पास करें, शॉर्ट वर्किंग ऑब्लिक रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट टू लेसी दैट इज राम एंड सन. तो अगर हम 2 एंट्री पास कर रहे हैं तो हमारी एंट्री इस तरीके से होगी. रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट जो कि सरप्लस अमाउंट सिर्फ मेंशन करेंगे, तो कितने का था? 2,000 रुपीज़ का. टू लेसी 2,000 रुपीज़ का. फिर पेमेंट कर रहे हैं जो एक्चुअल रॉयल्टी हमें मिली है. तो एक्चुअल रॉयल्टी हमें कितना मिली है? क्योंकि मिली तो 18 थी, मगर हमने 2,000 सरप्लस में रिक्यूप कर दिया, तो बची कितनी? 16. तो मिनिमम रेंट हम उसको पे करेंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹16,000 टू लेसी अकाउंट दैट इज टू राम एंड सन अकाउंट इज 16,000. इसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगी? जैसे कि कहा ट्रांसफ़र एंट्री होती है. ट्रांसफ़र में अब हमारे पास 2 चीज़ बची है. एक तो हमारे पास 4,000 का एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है
उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल में, और साथ में रॉयल्टी रिसीवेबल अमाउंट बचा है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल में। तो हमारी एंट्री है लास्ट की ट्रांसफ़र एंट्री, जिसमें कि हम पास कर रहे हैं रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट जो कि हमारी 18,000 है, और दूसरी है शॉर्ट वर्किंग या रॉयल्टी रिजर्व जो कि बचा कितना 4,000। तो टोटल पीएनएल में कितना हमने ट्रांसफ़र किया 18 + 4 22,000। इस तरीके से हमारी नेक्स्ट सेकेंड ईयर की एंट्री हुई। अब फोर्थ ईयर में जैसे कि फोर्थ ईयर में अगर आपने देखा होगा कि उसमें रॉयल्टी भी 16,000 है, मिनिमम रेंट भी 16,000 है। ये सिचुएशन हुआ मिनिमम रेंट इज इक्वल टू रॉयल्टी अकाउंट। सो इन दिस केस सिंपल एंट्री विल गोइंग टू पास एक ड्यू की, एक रिसीव की और एक ट्रांसफ़र की। तो ड्यू की एंट्री होती है राम एंड सन टू रॉयल्टी रिसीवेबल। राम एंड सन टू रॉयल्टी रिसीवेबल कितना होगा, ड्यू भी रॉयल्टी भी 16,000 है और मिनिमम रेंट भी 16,000 है। तो राम एंड सन अकाउंट डेबिट 16,000 टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 16,000। सेकेंड एंट्री पेमेंट की हो रही है, तो पैसा कितना आएगा, लैंडलॉर्ड को कितना पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा 16,000 से टू राम एंड सन अकाउंट 16,000। अब रॉयल्टी रिसीव जो थी उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो रॉयल्टी रिसीव को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो रॉयल्टी रिसीव कितनी की थी 16,000। तो हमने रॉयल्टी रिसीव अकाउंट डेबिट 16,000 टू पीएनएल अकाउंट 16,000। इस तरीके से हमने 2020 की भी एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट है 3 साल की हमने एंट्री पास कर दी और हमें लेजर बनाना है इसी 3 साल की एंट्री का। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जर्नल एंट्री की हेल्प से हम लेजर बना सकते हैं, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, लेजर बनाना और इजी हो गया। लेजर बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर, ये एक्सप्लेनेशन जो अभी ये न्यूमेरिकल चल रहा है, आपको हमारे यूपी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक में चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। ये सेम न्यूमेरिकल आपको वहाँ मिलेगा, ये सेम जर्नल एंट्री आपको मिल जाएगी। आप ये सेम बुक परचेज कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं लेजर की तरफ। लेजर कैसे, हमें बोला गया था लेजर हमें लेसी का बनाना है, मीन्स जो राम एंड सन है ये लेसी है, ठीक है। इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड राम एंड सन अकाउंट मीन्स लेसी अकाउंट। तो हम लेजर कैसे बनाते हैं ये आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में पता होगा। एक डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर का कॉलम होता है, रुपी का कॉलम होता है, फिर डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर का होता है, फिर रुपी का होता है। वन साइड हम लिखते हैं डेबिट, लेफ्ट साइड डेबिट रहता है, राइट साइड क्रेडिट रहता है, ठीक है। क्योंकि हम राम का अकाउंट बना रहे हैं, राम एंड सन का, लेसी का बना रहे हैं, तो हम देखेंगे 2018 फर्स्ट ईयर 2018 हमने लिख दिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ राम एंड सन थे जर्नल एंट्री में, जैसे कि पहली एंट्री जो होती है उसमें लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू शॉर्ट वर्किंग की एंट्री थी, अगर आपको याद होगा तो। पहली एंट्री जो हमने पास की थी 2018 में, वहाँ राम एंड सन को हमने डेबिट किया था। क्योंकि हमने राम और सन को डेबिट किया था, तो जब हम उसकी लेजर बनाएंगे तो हम क्रेडिट में 10,000 और 16,000 रॉयल्टी रिसीवेबल और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व लिखेंगे। 10,000 हम करेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल से और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व करेंगे 6,000 से। फिर सेकेंड एंट्री हमारी होती है बैंक टू राम एंड सन, जैसे कि ये है बैंक टू राम एंड सन। तो हमने राम एंड सन को क्रेडिट किया है, तो इसलिए हम राम एंड सन का जब लेजर बनाएंगे बैंक को डेबिट में दिखाएंगे ₹16,000 से। बैंक को डेबिट में किया हमने ₹16,000 से, और यहाँ पे हमारा ये टैली हो गया 16,000 करके फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर 2019 सेम चीज़। नेक्स्ट ईयर में अगर हम जाते हैं तो पहली एंट्री हमारी होती है राम एंड सन टू रॉयल्टी रिसीवेबल। राम एंड सन टू रॉयल्टी रिसीवेबल, राम को हमने डेबिट किया है, तो हम डेबिट में क्रेडिट किसको करेंगे, राम को हमने डेबिट किया है, तो इसलिए हमने डेबिट में टू रॉयल्टी रिसीवेबल लिख दिया 18,000 अमाउंट से। फिर हमने 2019 में हमारे पास सरप्लस था और उसको हमने रिक्यूप किया है, तो हमने रिक्यूप करने के लिए एंट्री पास की है 2019 में शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट 2,000 से हमने किया है, और बैंक को हमने डेबिट किया है 16,000 से टू राम। तो मतलब एक एंट्री ये हुई राम के नाम से
और दूसरी एंट्री ये हुई राम के नाम से। तो हम यहाँ क्रेडिट में एक रॉयल्टी रिजर्व 2000 का लिखेंगे और क्रेडिट में बैंक लिखेंगे 16,000 का 2019 में। क्रेडिट में हमने शॉर्ट वर्किंग या रॉयल्टी रिजर्व लिखा 2000 में 2000 रुपीज़ का, और बैंक का लिखा ₹16,000 का। इस तरीके से हमारा सेकेंड ईयर टैली हो गया 18,000 से। नेक्स्ट लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो एक एंट्री हमने फर्स्ट ईयर की ड्यू की पास की थी, जिसमें राम को हमने डेबिट किया था। तो डेबिट हमने किया है, तो यहाँ हम डेबिट करेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिसीवेबल 16,000। फिर नेक्स्ट एंट्री हमने लास्ट ईयर में पास की थी बैंक टू राम एंड सन अकाउंट, क्योंकि हमने राम एंड सन को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट में हमारा जाएगा टू बैंक 16,000। तो हम यहाँ यहाँ क्रेडिट करेंगे बाय बैंक 16,000। अब यहाँ भी हमारा 16,000 लास्ट ईयर में टैली हो गया है। इसके बाद हमें बोला गया है रॉयल्टी रिजर्व बनाने के लिए। रॉयल्टी रिजर्व सेम तरीके से हम रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाएंगे। पहले हम टेबल बना देंगे डेट पर्टिकुलर रुपी का। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी रिजर्व कब आया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग जनरेट हुई थी तो रॉयल्टी रिजर्व आया था। तो चलो हम फर्स्ट ईयर की एंट्री देखते हैं। फर्स्ट ईयर की एंट्री में आपको रॉयल्टी रिजर्व कब मिली थी? पहली एंट्री में जब ड्यू की एंट्री होती है तो हमारी शॉर्ट वर्किंग हो गई थी, तो इस वजह से हमने पास की थी। इसको हमने किया है क्रेडिट 6,000 से। तो अपने लेजर में चलेंगे, राम एंड सन को क्रेडिट करेंगे 6,000 से। राम एंड सन को हमने क्रेडिट किया 2018 में 6,000 से। फिर इसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अब कोई भी रॉयल्टी रिजर्व की एंट्री नहीं है। 2019 में हम इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। 6,000 को हमने यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया। उसके बाद हम एंट्री सेकेंड ईयर में देखते हैं रॉयल्टी रिजर्व की। रॉयल्टी रिजर्व हुआ था बिकॉज ऑफ सरप्लस हो गया था 2000 का सरप्लस हुआ था, तो उसको हमने रिक्यूब किया था। तो नेक्स्ट ईयर मीन्स कि 2019 में हमने ये 2000 की डेबिट की थी 2000 रुपीज़ से रॉयल्टी रिजर्व को। तो हम यहाँ डेबिट साइड में राम एंड सन करके डेबिट करेंगे 2000 रुपीज़ से। ये हमने 2000 से किया। फिर हमारे पास एक्सेस अमाउंट बच गया था, तो जिसको हमने ट्रांसफ़र किया है, जो कि 4,000 रुपीज़ था 2019 में। तो वो 4,000 की एंट्री भी हम अभी लेजर में पास करेंगे। ये रहा 31 दिसंबर को हमने रॉयल्टी रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिया था पीएनएल में, जो कि 4,000 रुपीज़ का था। हम पीएनएल लिखेंगे 4,000 से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। अब यहाँ हमने टैली कर दिया बिकॉज 6,000 यहाँ ब्रॉट डाउन था और 2,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 6,000, ये टैली हो गया। तो रॉयल्टी रिजर्व लास्ट ईयर में कुछ था नहीं बिकॉज रॉयल्टी इक्वल था मिनिमम से, तो ना सरप्लस हुआ, ना शॉर्ट वर्किंग हुई, ना रॉयल्टी रिजर्व बना। इसके बाद एक और अकाउंट हमें बनाने के लिए कहते हैं एग्जाम में, वो होता है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट कैसे बनता है? रॉयल्टी रिसीवेबल का अकाउंट में हमने डेट बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया, रुपये बना दिया, डेट बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया, रुपये बना दिया। तो 2018 में हमने रॉयल्टी रिसीवेबल की एक एंट्री पास की थी, लेसी अकाउंट टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू शॉर्ट वर्किंग, जो कि रॉयल्टी रिसीवेबल उस केस में हमारी 10,000 थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारी रॉयल्टी रिसीवेबल की एंट्री जो पास हुई है 10,000 की पास हुई है, जिसको कि हमने क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट में हमारे राम एंड सन आ जाएंगे 10,000 से। क्रेडिट में हम राम एंड सन कर देंगे 10,000 से, राम एंड सन 10,000 से। और एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 से। टोटल कितना हो गया? 10,000। मतलब ये टैली हो गया आपका फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर हमारी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व हुई थी बिकॉज सरप्लस हो गया था, तो उस केस में हमने एंट्री पास की थी, 2 एंट्री पास की हमने रॉयल्टी रिसीवेबल की। उसको देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ रॉयल्टी रिसीवेबल हमने क्रेडिट किया है 18,000 से, बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर 18,000 से हमने उसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो 18,000 की हमारी एंट्री होगी 2019 में। हम एक राम एंड सन की क्रेडिट करेंगे हम 18,000 से। फिर इसी एंट्री को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में 18,000 से। तो ये हमारा टैली हो गया
2019 में। फिर लास्ट ईयर जो हमारा था उसमें हमारा मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों ही इक्वल था, जो कि 16,000 था। सो सेम होगा, पहली एंट्री थी लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल। सो राम एंड सन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 16,000 से, और फिर एट द एंड ऑफ द 2020 उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि होगा 16,000। तो ये टैली हो गया 16,000 से। तो ये 3 एंट्री हम लेजर हम बनाते हैं। लैंडलॉर्ड की बुक में अगर हमें बनाना होता है तो 3 लेजर मोस्टली होता है। एक लेसी का होता है, एक रॉयल्टी रिसीवेबल का होता है, एक रॉयल्टी रिजर्व का होता है। रॉयल्टी रिजर्व हम लैंडलॉर्ड के केस में बोलते हैं, लेसी के केस में नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड फिनिश हुआ है। एक न्यूमेरिकल हुआ है जिसमें कि हमने एक जर्नल एंट्री करवाई है, लेजर बनवाया है। और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।